Hello students, today we will study the chapter number 4 of model. Chapter 4, the power of less. The second Prime Minister of India, Sri Lal Bahadur Shastri, was a true example of simplicity and nobility. Once when he was the Prime Minister, he visited a textile mill. The owner of the mill and the important people of his staff accompanied him as he was shown around the mill. He was shown how saris were being made. He requested the owner to show him a few saris. The owner was honored to show them to the Prime Minister. Each one of them was unique and of high quality. The owner went out of his way to show the Prime Minister the best saris he had. These saris are beautiful. How much do they cost? Asked Shastriji. This is rupees 1000 and that one rupees 1200, said the owner. At that time, 1000 rupees was of great value. These are too expensive, said Shastriji. Show me cheaper ones. हमारे देश भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री था, वो एक बहुत ही सही उदाहरण है, बहुत ही सादगी और महानता के। मीन्स वो बहुत ही सिंपलिसिटी से रहने वाले इंसान थे, बहुत ही सादगी से अपना जीवन जीते थे और एक बहुत ही महान इंसान थे। जब वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो एक टेक्सटाइल मिल में गए। टेक्सटाइल मिल वो होती है जहाँ पर कपड़े बनते हैं। उस कंपनी का मालिक और कुछ ज़रूरी स्टाफ वो इनके साथ पूरे इनको मिल दिखाने के लिए पहुँचे। उन्होंने इन्हें कुछ साड़ियाँ दिखाया, तो शास्त्री जी ने उन्हें कुछ साड़ी देखने के लिए कहा कि मुझे कुछ साड़ी चाहिए। वहाँ के मालिक को बहुत ही खुशी महसूस हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने देखना चाहते हैं। उन्होंने उससे एक से एक स्पेशल और अच्छी साड़ियाँ दिखाया, जिनमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ीज़ थी। उन साड़ीज़ को लेकर के वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे उन्हें दिखाने के लिए। वो साड़ियाँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही महंगी हैं। शास्त्री जी बोले कि ये साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, इनकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 1000 रुपये है और ये दूसरी वाली इसकी 1200 रुपये। ऐसी उस मिल के ऑनर ने कहा। उस समय 1000 रुपये की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी। उस समय 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। साथी जी ने कहा, ये तो बहुत ही महंगी है, मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखाइए। The mill owner was a little surprised by Shastriji's request. He could not understand why Shastriji would want to see cheaper saris, but he had to comply with the Prime Minister's request. So the mill owner showed him saris worth rupees 500 to 600. But Shastriji found these also to be too expensive. Show me saris that are still cheaper and ones I can afford to buy, said the Prime Minister. Now the mill owner was really confused. He could not imagine that the Prime Minister was of such ordinary means and could not afford a sari of high quality and price. So he decided to gift the saris to Shastriji. The mill owner said, "You are our Prime Minister. I am sure you can afford these saris. Moreover, please accept them as our gift to you." "No, my friend, I cannot accept such expensive gifts. But sir, giving these gifts to you is a privilege. I may be the Prime Minister, but that does not mean that I should accept these things I cannot afford. Moreover, these saris are for my wife. The first thing she will ask me is how I managed to buy something I cannot afford." So he purchased only the saris he could buy on his own.
The mill owner was struck by the Prime Minister's simplicity. He realized that he had just witnessed a great act of simplicity and humility. Only a man with higher thinking could dare to lead a life so simple. And Shastriji was such a man. He appreciated his simplicity and wisdom, and his respect for the Prime Minister grew manifold. उस मिल के ऑनर को ये बात सुनकर के थोड़ा आश्चर्य हुआ कि शास्त्री जी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसे बात समझ में नहीं आई कि वो क्यों सस्ती साड़ियाँ लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था इसलिए उन्हें कम दाम की साड़ियाँ दिखाया। मिल ऑनर ने इस बार जो साड़ियाँ दिखाया वो 500 से 600 रुपए की थी, लेकिन इस बार भी शास्त्री जी ने कहा कि ये बहुत महंगी हैं, मुझे ऐसी साड़ियाँ दिखाइए जो मैं खरीद सकूँ, जो मेरे बजट में हो, ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोले। तब मिल के ऑनर बहुत ही कंफ्यूज हो गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात क्यों कह रहा है। वो कैसे इन साड़ीज़, हाई क्वालिटी साड़ीज़ और दाम को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इसे कैसे नहीं खरीद सकता। खैर, तो उन्होंने शास्त्री जी को वो साड़ियाँ गिफ्ट करने का फैसला किया। मिल ऑनर ने कहा कि आप हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, निश्चित तौर पे आप ये साड़ियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम आपको ये उपहार के रूप में देना चाहते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा, नहीं मेरे मित्र, मैं ये बहुत ही महंगी गिफ्ट नहीं ले सकता, लेकिन ये गिफ्ट देना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, ऐसा उस मिल ऑनर ने कहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हो सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं ले सकता जो चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जिनका कीमत मैं नहीं दे सकता। ये साड़ी मेरी वाइफ के लिए हैं। पहली बात तो ये कि वो मुझसे पूछेंगी कि मैं इतनी महंगी साड़ियाँ कैसे खरीद पाया, सो मुझे ऐसी ही साड़ियाँ खरीदना है जो कि मैं अपने खर्चे पर ले सकूं। मिल ऑनर प्रधानमंत्री जी की सादगी से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि वो वास्तव में एक बहुत ही सामान्य और एक बहुत ही मानवता भरे इंसान हैं, एक बहुत ही महान इंसान है। केवल जिस व्यक्ति की सोच बहुत ऊंची होगी वही एक सादा जीवन जीने की कोशिश कर सकता है, और शास्त्री जी ऐसे ही व्यक्ति थे जो सादगी से जीवन जीना चाहते थे। उसे ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि प्रधानमंत्री जी ऐसे सिंपल हैं, उसके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना बहुत बढ़ गई। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द चैप्टर नंबर 4 और सब्जेक्ट मोरल। All of you watch the video and study it. Thank you, students.